اکبر کبیرہ سب نے ایک ایک دن کے فاقے سے تھے، کوئی دو دو دن سے فاقے سے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ بھوک سے پریشان ہے، گھر میں کھانے کو نہیں، بیوی بچوں کو نہیں، ہم یہی لگے پڑے ہیں، یہی خندق کی خدائی کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم کئی دن سے پریشان ہیں، ہمارے دیکھیے پیٹ کھول کر کے دکھایا، دیکھیے یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی سنا تو اپنے صحابی کی طرف مسکرا کے دیکھا اور اپنی قمیض اٹھائی۔ راوی کہتا ہے محمد الرسول اللہ نے، اس دنیا کے واحد سچے لیڈر نے اپنی قمیض اٹھائی، سارے صحابہ دیکھ کر چونک گئے۔ رسول اللہ کئی دن کے بھوکے پیاسے اور پیٹ پر ایک نہیں دو پتھر بندھے ہوئے۔ اللہ یہ ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ کوئی بھی سعادت اور خوش نصیبی اللہ کے کرم سے ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت بندے کو توفیق دیتا ہے تب وہ ذکر الہی سنتا ہے، اور اللہ کی یہ سنت کریمہ ہے کہ جب وہ بلاتا ہے تو نوازتا بھی ہے۔ آج اس محفل میں آپ بیٹھے ہیں خلوص و للہیت کے ساتھ بیٹھے ہیں، لائق مبارکباد ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ میرے خیال سے کئی ہزار روپیوں کا خرچہ کیا آیا۔ طاہر رضا رامپوری صاحب کافی دور سے تشریف لائے، بھائی حسان رضا صاحب قبلہ اور بھی مہمان تشریف لانے والے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ہو تو اس وے میں ہو کہ آپ کو لگے کہ ہاں ہمارا پیسہ برباد نہیں گیا۔ اس لیے اس جلسے کا سب سے پہلا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ یہاں سے جو بھی سن کے جائیں اپنی زندگی میں اسے شامل کریں۔ میں اکثر بولتا رہتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے 100 200 جلسے سن لیے، بلکہ کچھ لوگ تو جلسے ہی سنتے رہتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو یہاں آ گئے اور کچھ وہ ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں۔ میرا ان تمام سننے والوں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایک جلسہ بھی آپ کی زندگی میں بدلاؤ لا سکا؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ایک جلسہ بھی آپ کو اس قابل بنا سکا کہ آپ حشر کے میدان میں اپنے نبی کے سامنے جب حاضری ہو تو پشیمانی کا جو ہے پشیمان بن کر کے شرمندہ ہو کر کے اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو؟ کیا کوئی ایک ایسا جلسہ بھی آپ کو سنا؟ بہت ضرورت ہے اس بات کی، اس لیے کہ میں جہاں پر بیٹھا ہوں بھائی حسان رضا، میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں سے وہ بات کہوں جس میں آپ ہی نہیں آپ کی نسلوں کے سدھار کے بھی چشمے پھوٹے۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے مامور فرشتے آپ سے سوال نہیں مجھ سے سوال کریں گے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال۔ یہاں پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اب میں کس موضوع پہ گفتگو کروں؟ اخلاقیات پہ بولوں، معاملات پہ بولوں یا عبادات پر بولوں؟ کس موضوع کو میں اپنا موضوع سخن بناؤں؟ اگر اخلاقیات کی بات کری جائے تو امت مسلمہ کا اکثر و بیشتر حصہ اخلاقیات کے لیول سے بہت گر گیا۔ معاملات کی بات کی جائے تو یہ امت مسلمہ معاملات میں یہود و نصارہ اور مشرکین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور عبادات کا معاملہ کیا جائے تو آپ دیکھیں منبر و محراب کس قدر کے سنے۔ آج اگر یہ تقریر کی جائے کہ نوجوانوں شراب چھوڑ دو، توجہ ہے میں تقریر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں،
मैं तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोग साथ देंगे वो बड़े गौर से सुन रहे। अगर मैं ये तकरीर करूं कि ऐ लोगों, नौजवानों, तुम में शराब पीने वालों की शराब बहुत बढ़ती जा रही है, तो मेरी तकरीर ही नहीं, आप नेट पर सर्च करें, 1000 तकरीरें हैं और न जाने कितने हजार दर्जनों किताबें इस मौजू पे लिखी है। अगर मैं ये बात करूं कि नौजवानों, जिना के रेशात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस मौजू पर मेरी अकेले की तकरीर नहीं, सैकड़ों मुकर्रिर है और हजारों किताबें मुरत्तब हो चुकी है। मैं ये बयान करूं कि मुसलमानों, सूद खाना छोड़ दो, तो सिर्फ वाहिद मेरी तकरीर नहीं, न जाने कितनी तकरीर, न जाने कितनी हजार किताबें हैं। मैं अब अपनी तकरीर करने की कोशिश के आखिरी मकाम पर मैं शुरू कर रहा हूं। आपके पास अलग अलग अखलाकियात पर अलग किताबें, मामलात पर अलग किताबें, जो है इबादत पर तकरीरें और मकालात और किताबें हैं, अखलाकियात पर किताबें, मामलात पर लिखी हुई किताबें आपके सामने हैं। लाखों करोड़ों किताबें होने के बावजूद तमाम मामलात आपके सामने हैं, तमाम मामलात मुसलमानों के आपके सामने हैं। लेकिन इस बात को यही खत्म करो, जलालपुर की सरजमीन पर यही बैठे बैठे गुंबद खजरा की तरफ लौ लगाओ, 14 सदियों पहले चले जाओ, वहां पता चलेगा वहां सिर्फ एक किताब थी। है वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नबवी में सिर्फ एक किताब थी, अल्लाह की किताब जिसे कुरान कहते हैं। अल्लाह सुभान। आज लाखों किताबें हैं, करोड़ों किताबें हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के जमाने में, जमाना तो रसूलुल्लाह का कब है, हजरत अबू बकर के सामने, हजरत उमर फारूक के सामने, हजरत मौलाए कायनात के सामने, हजरत उस्मान गनी, तलहा और जुबैर के सामने सिर्फ एक किताब थी और तफसीर के नाम पे उसवे रसूल था। किताब एक थी और तफसीर के नाम पर सिर्फ एक उसवा था रसूलुल्लाह का। एक किताब पढ़ करके उन जानिसाराने रसूल ने दुनिया की काया पलट दी और ये बता दिया कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुफ्ती रिहान में साहिब किबला, नारे तकबीर। एक किताब थी दौरे रसूल में, सिर्फ वाहिद किताब जिसको मुसहफ कहते हैं उलमा और आप कहते हैं कुरान पाक, और तफसीर के नाम पर रसूलुल्लाह की जिंदगी। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इसी को मौज़ूए सुखन बनाता हूं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, अगर तुम्हें सही तरीके से मुसलमान बनना है, मेरी बात तो समझ में आ रही है, हम उसके नहीं कायल जो सर पे गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। आप नहीं जानते उम्मत मुस्लिमा का कितना माहौल खराब है। मैं तमाम मकातिबे फिक्र की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने रज़वी शेरों को जगाना चाहता हूं। मैं मकतबे फिक्र की बात नहीं कर रहा किसी भी, मैं तो उनसे बात कर रहा हूं जो अपने आप को सुन्नी रज़वी कहलवाते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की कभी अपनी सूरत आईने में भी देखी है? जन्नत पाना, ये जो अपने आप को सुन्नी सही उल अकीदा कह रहा है, सबसे ज्यादा नमाजें न पढ़ने वाली इन्हीं है। मुझे गलत मत समझना, मैं अपनों से बात कर रहा हूं। मैं किसी और को कहूं, मैं किसी और बच्चे के थप्पड़ मारूं, उसके बाप को गुस्सा आएगा, लेकिन मैं खुद अपने भाई को थप्पड़ मारूं तो उसको दर्द होगा। मुझे पता है मेरा भाई कहां पर गलत कर रहा है। और एक बात बता दूं आपको, इस्लाह यहां से लेकर के वहां तक सबकी होगी, इससे मैं भी बशमूलियत मन यहां से लेके वहां तक काया पलट गई इस्लाम की। क्या इस्लाम था? रसूलुल्लाह के जमाने में कौन सा इस्लाम था और तुम कहां पर लेकर आए? आज अगर कोई सूद खाए तो उसे बिजनेसमैन कहते हो,
अगर कोई शराब पीने वाला हो उसे सो कोल्ड मुसलमान कहते हो। अगर कोई अल्लाह अकबर कबीरा धोखा दे दे तो उसे अक्लमंद और चालाकी का नाम देते हो। जरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी तो पढ़ो। कौन सा इस्लाम लिए फिर रहे हो? मैं आपसे पूछूं जलालपुर के गयूर मुसलमान, जरा बताओ आप मुसलमान क्यों हैं? तो बताएंगे इसलिए कि हमारे अब्बा मुसलमान है। अब्बा से पूछा जाए आप मुसलमान क्यों हो, तो अब्बा कहेंगे इसलिए कि हमारे दादा मुसलमान थे। दादा की शरत टटोली जाए तो पता चलेगा इसलिए दादा मुसलमान थे कि परदादा मुसलमान। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये ऐसा इस्लाम काबिल कबूल नहीं है, बल्कि इस्लाम वही कबूल है कि जब जलालपुर के गयूर मुसलमान से पूछा जाए कि पता तू मुसलमान क्यों है, तो वो जवाब दे इसलिए कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाए। इस्लाम में कोई जातिवाद, कोई बाप दादा नहीं। बाप दादाओं का दीन खत्म करने के लिए ही इस्लाम आया है। आज तुमसे पूछा जाए कि ये 40वां हो गया अब्बा का और ये देगे बना रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? बोले क्या करें, मजबूरी है हमारी, और हमारे वालिद भी ऐसा करके चले गए। आज अगर पूछा जाए कि आपके यहां पर आप तो नमाजी परहेजगार हैं, आपके बेटे के जो है अल्लाह अकबर कबीरा मंडे में डीजे और गाने क्यों बज रहे हैं, तो आपका जवाब ये होता है कि हजरत क्या करें, मजबूर हैं। रिश्तेदार बैठने को तैयार नहीं थे, रिश्तेदार बैठने को तैयार नहीं, दामाद बैठने को तैयार नहीं, भातैया आने को तैयार नहीं। उनकी शर्त ही ऐसी थी कि जब तक डीजे गाने बाजे नहीं बजेंगे हम तुम्हारे यहाँ शादी में शिरकत नहीं कराएंगे। अरे मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ जो ये कहते हो बहनोई होगा अपने घर जा करके बैठ, भातैया होगा अपने घर का होगा, ये रसूल के आशिक का घर है, यहाँ मौत तो आ सकती है, रसूलुल्लाह की बगावत नहीं हो सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सुभान। ऐसे मुसलमान कहाँ हैं? ऐसे मुसलमान कहाँ हैं? एक वो मुसलमान थे कि जब कुरान ने कहा वस्मऊ वातिऊ, अपने रसूल की सुनो और अमल कर लो, इताअत करो, एक लम्हा भी नहीं सोचते थे कि दरमियान में रसूल ने फरमाया ऐसा तो हमें करना चाहिए कि नहीं। हजरत अबू हुरैरा, नहीं जानते आप लोग हजरत अबू हुरैरा को? यहाँ पर बैठने वाला जो हदीस बयान करता है उसमें अक्सर और बेशतर रिवायात हदीस हजरत अबू हुरैरा, वो ज़ात हजरत अबू हुरैरा सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन फअंसा हो, या रसूल अल्लाह मैं आपसे हदीस सुनता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, हदीस सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, हदीस सुनता हूँ और भूल जाता हूँ। सरकार ने फरमाया अच्छा, सरकार ने फरमाया चादर बिछा दो। तवज्जो है जलालपुर वालों, क्या फरमाया सरकार ने? चादर बिछा दो। एक मर्तबा भी हजरत अबू हुरैरा ने नहीं सोचा मेरे सवाल का और सरकार के जवाब का जोड़ क्या बनता, एक लम्हा नहीं सोचा कि मैं कह रहा हूं कि या रसूलल्लाह मुझे भूलने की बीमारी है। सरकार फरमाते हैं तो चादर बिछा दो, मेरे सवाल का आका के जवाब का जोड़ क्या बनता है? अल्लाह अकबर कबीरा, वो जानते थे ये वो हुक्म है। अल्लाह अकबर, जहां से हल्की सी भी ताखीर कर दी ईमान खतरे में आ जाए। हजरत अबू हुरैरा जैसी सुना, आनन फानन अपनी चादर बिछा दी। अब सरकार ने यूं हाथ ऊपर किए, फिर यूं किया। रावी कहता है हजरत अबू हुरैरा की चादर में इस तरह से डाला। अब रावी कहता है हुजूर के हाथ खाली थे। तवज्जो चाहूंगा, क्या थे? ऐसे उठाए, ऐसे किए, हजरत अबू हुरैरा की चादर में डाल दिए, चादर में डाल दिए। रावी, जितने रावी हैं सब ये कह रहे हैं कि ऐसे हजरत सरकार के हाथ थे, खाली थे और डाल दिए, खाली थे डाल दिए। हर देखने वाले ने देखा खाली है, डाल दिए। लेकिन मैंने बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछा, ए इमाम अहमद रजा, मुकर्रिर तो ये बताते हैं कि हाथ खाली थे, वो कहते हैं, बरेली का इमाम बोलता है अरे नादान, इनके चक्कर में न पड़ना। अरे सुन, है सुभान अल्लाह।
इनके चक्कर में मत पड़ना। सुन, मैं बताता हूं कि सरकार के हाथ में क्या है, क्या है, क्या है सरकार के हाथ में। ऐसे 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 करके पकड़ा और ऐसे रख दिया। अब इमाम कहते हैं मालिक कौनैन है, ऐसे करके पकड़ा, ऐसे रख दिया। मालिक कौनैन है, दो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। लोगों ये मत देखो कि सरकार के हाथ खाली है, अरे अल्लाह के खजाने की कुंजी रसूलुल्लाह के हाथ में। अल्लाह अकबर कबीरा, एक लम्हा भी नहीं सोचा। हम क्या करते हैं कि हमें ये नहीं पता कि नमाजें पढ़नी चाहिए, हमें ये नहीं पता कि रोजा रखना चाहिए, हमें ये नहीं पता कि अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए, हमें ये नहीं पता, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, हमें ये नहीं पता कि किसी को गाली नहीं देना चाहिए, हमें ये नहीं पता कि गीबत नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आज माशरे का हालात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियों पहले इरशाद फरमाया है, लोगों मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यब्का मिनल कुरआन इल्ला रस्मुहु। सरकार ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, नाम का। वला यब्का मिनल कुरआन इल्ला रस्मुहु, और कुरान सिर्फ लिखा हुआ रह जाएगा। आज अक्सर और बेशतर मुसलमान इसी ख्याल में है कि हम तो मुसलमान हैं, बाकी तमाम मामलात हमारे यहूद और नसारा। आज हमारे घरों में कुरान तो है लेकिन पढ़ने की तौफीक नहीं। वो जब से हमने दान में सजा करके रखा और ताक में रख दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए। एक एक इंची गर्द जम गई, कोई पढ़ने वाला नहीं। बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में कुरान पाक की तिलावत होती है? चंद लोग होंगे, चंद लोग होंगे, चंद लोग होंगे। ये बताइए कि कुरान ताकों में सजाने के लिए आया? कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, बल्कि पढ़कर अमल करने के लिए आया था। आज हमारे पढ़ना तो दूर की बात, कुरान पाक सीखने को तैयार है और उसे इस्लामी किताब बना करके हमने ताक में रख दिया। और हम मुसलमान तो इतने बड़े हैं कि बेटी की शादी हो तो ये पता है 3 दिन पहले वो जाता है कुरान पाक बेटी के ससुराल। बेटी घर की औरतें फिर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मर्दों को मयसर नहीं। इन्हें पढ़ने की आदत किस बात की है? हाँ, अखबार होना चाहिए, अच्छा नजर साहब, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, सुबह सुबह हो, एक हाथ में कप हो, टेबल पे अखबार हो, ये चाहिए। अखबार पढ़ने का इतना क्रेज, उसमें सारी बातें झूठ होती हैं। मैं बहुत दफा बोलता हूँ ये जुमला, अखबार में सारी बातें झूठ होती है, सिर्फ एक बात सच होती है, दिन और तारीख, बाकी सब झूठ। इस झूठ को पढ़ने का इतना बड़ा क्रेज कि जिस दिन अखबार नहीं आया बीवी से लड़ गया, बेटे से लड़ गया, कहां डाला तूने अखबार, कहां फेंक डाला तूने अखबार। मैं कहता हूं जलालपुर के गजूर मुसलमान, अखबार पढ़ना है तो पढ़, वरना अगर ना मिले तो मत पढ़। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अखबार क्यों पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, हम अखबार इसलिए पढ़ते हैं ताकि पता चले कि कल उदरकी में क्या हुआ था, तो जलालपुर में क्या हुआ था, अल्लाह अकबर गदीपुर में क्या हुआ था, मुरादाबाद और लखनऊ में क्या हुआ था। आप अखबार इसलिए पढ़ते हैं ताकि पता चले कि कल क्या हुआ था। मैं कहता हूं जलालपुर के गजूर मुसलमान, अरे तू कुरान पढ़ा कर ताकि तुझे पता चले कि कल क्या होने वाला है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर साहबी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, शान कुरान, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। आप जिस भी फील्ड में चले जाएं, चाहे उसका ताल्लुक अखलाकियात से हो, चाहे उसका ताल्लुक तिजारत से हो, चाहे उसका ताल्लुक इबादत से हो, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल।
आज लोग कहते हैं कि हजरत गुर्बत इतनी है कि नमाज पढ़ी नहीं जाती। अगर नमाज पढ़ेंगे तो खाना कैसे बनेगा? अगर नमाज पढ़ने लगे तो भट्टे पे जाएंगे कैसे? और अगर भट्टे पे नहीं जाएंगे तो फिर घर में 500-600 रुपए कैसे आएंगे? मैं कहता हूं कि ए गरीब मुसलमान, हाँ गुर्बत ने तेरे घर पे दस्तक दी है और पांव पसार लिए हैं, लेकिन एक मर्तबा रसूलुल्लाह की जिंदगी तो पढ़। सरकार का तवक्कुल देख। ग़ज़वा खंदक का मौका है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कांधे से कांधा मिला करके ग़ज़वा खंदक में लगे हुए हैं, खंदक खोद रहे हैं। अरे बाकी जितने सहाबी थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, सब ने एक एक दिन के फाके से थे, कोई 2-2 दिन से फाके से था। अल्लाहु अकबर कबीरा, सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, भूख से परेशान है, घर में खाने को नहीं, बीवी बच्चों को नहीं, हम यहीं लगे पड़े हैं, यही खंदक की खुदाई कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हम कई दिन से परेशान हैं, हमारे देखिए पेट खोल करके दिखाया, देखिए या रसूल अल्लाह, हमारे पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कबीरा जैसे ही सुना तो अपने सहाबी की तरफ मुस्कुरा के देखा और अपनी कमीज उठाई। रावी कहता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, इस दुनिया के वाहिद सच्चे लीडर ने अपनी कमीज उठाई। सारे सहाबा देखकर चौंक गए। रसूलुल्लाह कई दिन के भूखे प्यासे और पेट पर एक नहीं 2 पत्थर बंधे हुए। अल्लाह सब्र और तवक्कुल से काम लिया करो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल। आप अगर भूखे हैं, सब्र कीजिए। अल्लाह की नेमतें जो जन्नत में है, उस नेमत के सामने दुनिया की कोई हैसियत नहीं। आप अगर गरीब हैं, तब भी सरकार की जिंदगी आपके लिए नमूने अमल। आप अगर मालदार हैं तो देखिए, सरकार की बारगाह में एक बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ सरकार को किसी ने खिदमत में दे दिया, तोहफतन दे दिया। तो एक ने आकर के सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब तो आप मालदार हो गए। सरकार ने फरमाया, तूने मेरी मालदारी क्या देखी? सरकार ने इरशाद फरमाया, मालदार हो गए या रसूल अल्लाह, आपके पास बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ है। सरकार ने फरमाया, मुझे मालदारी पसंद नहीं है, मैं गुर्बत को पसंद करता हूं। जा, वो जितनी बकरियां हैं मैंने तुझे दे दी। ये सरकार की मालदारी। और देखिए फिर इसार, कुर्बानी और दूसरों को देना। और हाँ, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें किसी काबिल बना दे, अगर तुम गांव के प्रधान बन जाओ, अगर डीएम एसडीएम बन जाओ, विधायक बन जाओ, तब भी रसूलुल्लाह की जिंदगी आपके लिए नमूना अमल है। आज तो मुसलमान का हाल ये है, मैं अपने आखिरी वक्तों में तकरीर कर रहा हूं, आज मुसलमान का हाल ये है, इतना बुरा हाल है कि अभी ये किसी लायक नहीं होता, दुश्मनी हो जाती है तो सब्र करता है। किस लिए सब्र करता? मैं जरा प्रधान बन जाऊं तो तेरी ईंट से ईंट बजाऊंगा, मैं विधायक बन जाऊं तो तेरी ईंट से ईंट बजाऊंगा, मैं फला मंत्री का करीबी हो जाऊं तो मैं तेरी ईंट से ईंट बनाऊंगा। ए मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें कोई मनसब अता करे तो जरा देखना मदीने के ताजदार की तरफ। रसूलुल्लाह की जिंदगी उस वक्त भी तुम्हारे लिए हिदायत और नमूना अमल है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फतेह मक्का का दिन है, सरकार मक्के की तरफ जा रहे हैं और फातिहाना शान और शौकत से जा रहे हैं। मक्के की सरजमीन पर लाइन से खड़े हैं। कौन? जिन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दी। कौन? जिसने रसूलुल्लाह के घर वालों को परेशान किया। कौन? जिसने रसूलुल्लाह के रास्ते में जो है कांटे डाले। कौन खड़े हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की सारी जिंदगी मुखालिफत की? बदर से लेकर के फतेह मक्का तक तमाम दुश्मन रसूलुल्लाह की आंखों के सामने है। चाहते तो एक एक दुश्मन का सर कलम कर देते, लेकिन बाहर रहमतुल लिल आलमीन, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, सरकार रहमतुल लिल आलमीन बन के आए और सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों देखो, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। तुम अगर गरीब हो तब भी मेरी जिंदगी नमूना अमल है, अगर मालदार हो तब भी जिंदगी नमूना अमल है। और अगर तुम्हें अल्लाह किसी मनसब पर फाइज करे तो किसी और तरफ नहीं बल्कि फतेह मक्का का वाकया देख लेना। लाइन से खड़े हैं सरकार के तमाम दुश्मन। अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते हैं, अंतुम तुलका, जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। नारे